So once again, very good afternoon. So let us discuss your doubts of M2 TPPs. Okay. So in TPP1, I think you are having first doubt in directly question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 के पहले किसी को डाउट है? क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट है क्या? या सानिया आपने शायद लिखा था क्वेश्चन 1 to 4. Right. So let us go for question number 4. Question 1 में है. Okay. So let us see question number 1 first. So in question number 1, they are asking if capital A is a set of letters needed to spell mathematics. कैपिटल ए आपका सेट है जिसमें हम मैथमेटिक्स के लेटर्स लिखेंगे. And capital B is the set of letters needed to spell statistics. Then which of the following is correct? Right, that is A intersection B, A minus B equal to 5, A union B equal to A minus B, none of this. That we will see. Okay, sure. So what will be A over here? A में मैं क्या लिख सकता हूँ? M, A, T, H, E, फिर M वापस रिपीट होगा, A रिपीट, T रिपीट, I, C, S. Okay. So what will be my B over here? S, T, A, T वापस रिपीट होगा नहीं, I, S रिपीट हो रहा है, T रिपीट, I रिपीट एंड C. दोनों में कॉमन क्या क्या है? S, T, A, I, C. So there are 5 letters common. Now A is subset of B. So first option is obviously wrong. Right? A sub B का subset है ही नहीं. Next, A minus B equal to 5. That is also wrong. Because if I do A minus B, I'll be left with MHE. Okay. Then A union B equal to A minus B. No, A minus B में आपका सिर्फ MH ही आएगा और A union B करोगे तो A आ जाएगा आपका पूरा. So all options are wrong, right? इसलिए final answer क्या आएगा? D. एक मिनट. If A is the letter, then which of the following is correct? So none of this. Answer will be D. क्योंकि तीनों wrong आएंगे. Because यहाँ पे B आपका हो जाएगा सबसेट ऑफ A. फिर A माइनस बी आपको पाई नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको मिलेगा नॉट दिस. A माइनस बी विल बी इक्वल टू MHE. ओके, सो इज इट क्लियर? क्वेश्चन 1 के बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, it is given that number of elements in set A are M, number of elements in set B are N, then total number of non-empty relations that can be defined from A to B. A to B में हम कितने एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, कितने रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, और ये रिलेशंस आपके होने चाहिए नॉन एम्प्टी. ओके, नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B are 2 to the power mn. Right, these are number of relations from A to B. वो आपके 2 to the power mn होते हैं. अब ये एग्जैक्टली सारे सबसेट है A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स, और वो नंबर ऑफ सबसेट्स में आपके एम्प्टी सेट भी इंक्लूडेड होता है एंड A क्रॉस B भी इंक्लूडेड होता है. राइट, अब आपको चाहिए नॉन एम्प्टी रिलेशंस. नॉन एम्प्टी मतलब ये वाले रिलेशन को आपको माइनस करना है. सो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी relations
फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू 2 to the power mn माइनस 1, क्योंकि इसमें से बस एक रिलेशन मुझे माइनस करना है जो रिलेशन मेरा एम्प्टी है, राइट। बाकी सारे रिलेशन में मुझे कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, तो वो एम्प्टी नहीं होंगे। इज इट क्लियर? फिर क्वेश्चन 4 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, जस्ट चैट बॉक्स में लिख देना कि सर एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन। सर 6 ऑल्सो, 6 में भी डाउट है, so let us see 6। If ABC are three sets such that number of elements in A are 25, number of elements in B are 20, number of elements in C are 27। ये तो आसान है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है, सामने किया भी है पाई। ये तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 7, ए इंटरसेक्शन सी इज पाई। ये मैंने आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाया था। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। So Vivek, just first tell me the formula of this number of elements in A union B union C। इसकी formula क्या होती है? Just unmute yourself and tell me the formula। Hello, हाँ विवेक बोलो। sir. First, number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। ओके, अब सारी वैल्यू तो दी गई है, तो अब डाउट किस में होगा? ये आपका ए इंटरसेक्शन सी पाई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए Sir, इंटरसेक्शन से कितना हो जाएगा? 0, राइट। अब अगर ए और सी का इंटरसेक्शन पाई है, sir, ये la- हाँ sir, ये बोलो। लास्ट वाला नहीं पता चला नंबर ऑफ ये ए सेम वाला क्वेश्चन हमारा था ए। एक्सरसाइज या होमवर्क में, हाँ वही समझा समझो। अब ए और सी का इंटरसेक्शन आपका पाई है, इजंट इट? अब पाई के साथ आप मान लो बी का इंटरसेक्शन कर रहे हो, समझ लो आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, राइट। इंटरसेक्शन में मैं क्यूमुलेटिव रूल अप्लाई कर सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। उसके बाद मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। अब ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या होगा? पाई। तो पाई के साथ बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? पाई ओनली, इजंट इट? हाँ, अब क्लियर हुआ? तो इसका नंबर ऑफ हाँ यस सर। एलिमेंट्स हो जाएगी 0। अब आसान है। ओके हाँ हो गया सर। ओके, चलो क्वेश्चन 6 के बाद आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट थे या डाउट था? क्वेश्चन नंबर 8, इजंट इट? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हियर योर फंक्शन इज स्क्वायर रूट माइनस ln x minus 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x square plus 2x। ओके, तो ऑब्वियसली दोनों का सेपरेटली हम देखेंगे। स्क्वायर रूट माइनस ln x माइनस 1 के लिए क्या होना चाहिए और स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x के लिए क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इतनी छोटी जगह में तो नहीं देख सकते।
ओके, सो पहले न्यूमिनेटर के लिए देखते हैं. सो फॉर स्क्वायर रूट minus ln x minus 1, your minus of ln x minus 1 should be पॉजिटिव, और इवन वो जीरो भी हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में. चलो अभी हमने देखा जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा. सो ln x minus 1 विल बिकम लेस देन और इक्वल टू जीरो. अब मुझे x माइनस 1 चाहिए. अब मुझे पता है ln उस तरफ जाता है तो e टू द पावर होती है. बट अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है इनइक्वालिटी का कि ये इनइक्वालिटी यहाँ पे ऐसी की ऐसी रहेगी बिकॉज ई ग्रेटर देन 1 है. अभी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, सो इट इज सस्पेंस कि यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई. वो सस्पेंस आपका खुलेगा क्लास 12 में. ओके, तब तक ये सस्पेंस बनाए रखें. इज इट क्लियर. अभी सिर्फ इतना मान लें कि बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. अगर बेस लेस देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. अगर बेस आपका लेस देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. So implies x minus 1 is less than or equal to e to the power 0 is 1. So x is less than or equal to 1 plus 1, that is 2. ये न्यूमिनेटर के लिए मुझे मिला. चलो अब डिनोमिनेटर के लिए देखते हैं. So for 1 upon square root x square plus 2x to be greater than 0, right? Oh, sorry. Or for this, your x square plus 2x should be greater than 0. Equal to 0 नहीं हो सकता. x कॉमन निकालो, x into x plus 2 is greater than 0. अगेन दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, दैट इज x ग्रेटर देन 0 एंड x plus 2 ग्रेटर देन 0. फिर बीच में कंडीशन आएगी और x लेस देन 0 एंड x plus 2 लेस देन 0. तो यहाँ से आपका x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ से आपको x मिलेगा ग्रेटर देन -2 और बीच में एंड है, मतलब आपको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे लोगे, तो x ग्रेटर देन -2 तो वो कौन सा रीजन होगा, सपोज ये नंबर लाइन है. ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2. चलो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब इतना पोर्शन होगा. ओके, 0 से बड़ा. x ग्रेटर देन -2 तो वो -2 से बड़ा होगा और यहाँ पे 0 और -2 बोथ आर एक्सक्लूडेड तो वो ओपन हो जाएंगे. चलो अब ऐसा पोर्शन लेना है कि जो दोनों के लिए कॉमन हो, दोनों का इंटरसेक्शन. तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कितना आएगा, इतना. ओके, सो हियर therefore my x will be greater than 0. ये कंडीशन के लिए. राइट, चलो अब दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं. बीच में मेरे पास और है, राइट, और मतलब अब यहाँ पे मुझे यूनियन अप्लाई करना है. चलो x लेस देन 0 और यहाँ से मुझे मिलेगा x लेस देन -2. तो दोनों का प्लॉट करता हूँ पहले. ये है मेरा 0, ये है मेरा -2. चलो x लेस देन 0, x लेस देन 0 कितना पोर्शन हो जाएगा, ये 0 है. अब 0 से मुझे इस तरफ जाना है. हाँ, x लेस देन -2 तो ये -2 है, -2 से इस तरफ जाना है. चलो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, एनीवन, इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना. सो देयरफॉर माय x शुड बी लेस देन -2 और बीच में है मेरे पास यूनियन. ओके, और मीन्स यूनियन. ओके, और मीन्स यूनियन. तो अगर मैं यूनियन लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कंडीशन मिलेगी माय x शुड बी बिटवीन -infinity to -2. ओके, सो x शुड बी बिटवीन -infinity to -2 union 0 to infinity. So my x should be between -infinity to -2 or 0 to infinity. Is it clear? अब ये मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर का मिला, अब ये न्यूमिनेटर का है. अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, समझना. अब इसका और इसका, इन दोनों का अब मुझे लेना है इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में आएगा n, क्योंकि वही वैल्यू जो मैं न्यूमिनेटर में रखूंगा वही वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में रखूंगा. एक बार पूरा क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको खत्म करते हैं. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए अगेन एक बार ग्राफ प्लॉट कर देते हैं. तो न्यूमिनेटर मुझे ये बता रहा है कि उसकी वैल्यू 2 या 2 से कम होगी. तो 2 या 2 से कम मतलब 2 इंक्लूडेड है.
और उससे कम, तो ये मिलेगा। डिनोमिनेटर मुझे बता रहा है आइधर वो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में होगा या 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, और माइनस इन्फिनिटी से -2 वाला पोर्शन वो आपका ओपन रहेगा, राइट। तो मार्कर इसमें, तो ये -2 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 तक आ गया, फिर 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये दोनों पोर्शन और ये पोर्शन, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एनीवन? टाइपिंग चेक बॉक्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों का कॉमन पोर्शन, जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या था? ये साइन स्कीम्स। पर साइन स्कीम्स अभी मैंने नहीं समझा है ना आर्यन। साइन स्कीम्स हम इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में देखेंगे। ओके, साइन स्कीम्स आप कब पढ़े हो? फाउंडेशन में पढ़े थे क्या? जस्ट लेट मी नो। ओके, ओके, हाँ, तो वो साइंस स्कीम्स में पढ़ाऊंगा, बिकॉज सिंस जितने स्टूडेंट्स फाउंडेशन वाले थे, ओके, दे कैन यूज साइंस स्कीम ओवर हियर, राइट। हाँ, बेबी काउ मेथड, दैट ओनली। बट सिंस नाउ हियर ऑफिशियली अभी हम क्लास 11th में साइंस स्कीम अभी तक नहीं पढ़े हैं, बेबी काउ मेथड, जो हम लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए तब तक अभी सिर्फ हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे। ओके, चलो, यस। So your common portion will be -∞ to -2, फिर उसका यूनियन मिलेगा आपको 0 से 2, जहाँ पे सिर्फ आपका 2 इंक्लूडेड होगा। ओके, आप जब भी आपका इंटरवल लिखें तो उधर ध्यान दें कौन सा इंक्लूडेड होगा कौन सा एक्सक्लूडेड। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन, तो यहाँ -2 से इधर जाएगा, -2 आपको ओपन आएगा, फिर सॉरी, यहाँ पे आपका 0 से 2, तो 0 ओपन है और 2 समझ में, यहाँ पे 2 क्लोज है, यहाँ पे भी 2 क्लोज है, तो 2 दोनों में आ जाएगा। Okay, so here your common portion will be -∞ to -2. -2 is open. Union 0 is open and 2 is closed. So x belongs to -∞ to -2. Union 0 to 2. मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है ऐसा। चलो समझो। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ ln x-1 बाय x² + 2x। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो माइनस ऑफ ln x-1 वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, माइनस उधर जाएगा, और या मतलब माइनस अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, फिर e उधर जाएगा तो e⁻0 इज ग्रेटर देन 1। तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहती है। अभी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेस लेस देन 1 है तो चेंज होगी। अब ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे क्लास 12th में। तब तक के लिए सस्पेंस। एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 यहाँ से मिल रहा है। अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालना है, 0 नहीं हो सकता वो डेफिनेटली। फिर वहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शन, क्या इधर वो दोनों पॉजिटिव होंगे या इधर वो दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा, राइट, मतलब दिस एंड दिस, तो उनका कॉमन पोर्शन। फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो दिस एंड दिस, तो उनका कॉमन पोर्शन। क्योंकि अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मेरा x -2 से छोटा है तो वो 0 से छोटा हो ही जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं x ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ तो वो ग्रेटर देन -2 हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। ओके, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ क्योंकि बीच में और, तो ये मुझे मिला डिनोमिनेटर की कंडीशन, ये है न्यूमिनेटर की कंडीशन। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में वापस एंड है, तो अब मैं इंटरसेक्शन कैसे लगाऊंगा? तो इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो इधर नीचे है, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा वो ये ऊपर है। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन, तो आपको इतने से इतना और इतने से इतना मिल जाएगा। तो इज इट क्लियर? x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 0 to 2।
आगे बढ़े, मजा आया ये क्वेश्चन में? ओके, जस्ट गिव मी सम रिस्पॉन्स। बाकी सब सो गए क्या? लग रहा है खाना खा के सो गए अच्छे से। ओके, मतलब जितने रिप्लाई दे रहे हैं उतने जाग रहे हैं, राइट? चलो क्वेश्चन 8 के बाद कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 11 आई थिंक। हाँ पहुंचेंगे, 29 पे पहुंचेंगे, 29 लिखा हुआ है मेरे पास। सो क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? 11 के बाद 14। चलो क्वेश्चन 11 is also a good question. Given that f of x is equal to 1 upon square root mod x minus x, g of x is equal to 1 upon square root x minus mod x, then which of the following statement about domains of f and g are correct? तो चलो f और g का डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो f का डोमेन फाइंड करने के लिए ये डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो योर mod x minus x should be greater than 0, implies your mod x should be greater than x। चलो अब ऐसे कौन सा x होगा जिसका मैं मॉड निकालूंगा तो वो उससे भी बड़ा आ जाएगा? हाँ, अगर आप डायरेक्टली लॉजिक से कर सकते हो अभिराम तो यस इट इज वैलिड, वेरी गुड। सो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, यस, राइट। समझना, एक्स हमारे पास नंबर्स हैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। चलो जीरो का मोड क्या आएगा? एक्स, तो वो सेम होगा, राइट। चलो नेगेटिव नंबर्स का मोड देखो, सपोज मैं माइनस फाइव का मोड निकाल रहा हूँ तो ये फाइव हो जाएगा, राइट। तो माइनस फाइव का मोड है वो माइनस फाइव से बड़ा है, राइट। आई नो दैट फाइव इज ग्रेटर देन minus 5. Now what is my 5 over here? It is mod minus 5. So mod minus 5 is greater than minus 5. Right? This is my x. So mod x is greater than x. For which numbers? Negative. पॉजिटिव के लिए तो क्या हो जाएगा? आप मोड 5 लोगे तो वही 5 हो जाएगा, एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, राइट। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो इफ mod x is greater than x, that means x should be your negative numbers, negative integers, right? So अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं या कोई भी, नॉट ओनली इंटीजर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका मॉड लूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ऑलवेज एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, और एनी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। पता चला? इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे पता चल रहा है, इजंट इट? हमें ये पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा सपोज माइनस फाइव, उसका मोड लूंगा, ये एक्स है, उसका मोड लूंगा तो मोड एक्स मुझे मिलेगा पॉजिटिव, और जब वो मोड एक्स पॉजिटिव मिलेगा तो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से ऑलवेज बड़ी होती है। सो मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी नेगेटिव नंबर। ओके, इज इट क्लियर? ओके जितेंद्र, नो इश्यू, यू कैन। चलो, सो एफ ऑफ एक्स की ये वाले केस में मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? तो माई डोमेन ऑफ एफ विल बी ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ओके, जहाँ पे जीरो आपका ओपन इंटरवल आएगा उससे आप आर माइनस भी लिख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर्स को मैं आर प्लस लिख रहा था, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स को मैं आर माइनस भी लिख सकता हूँ। जहाँ पे प्लस माइनस इसको हम ऐसे पावर में डिनोट करेंगे। ओके, चलो अब जी ऑफ एक्स के लिए देखते हैं। तो जी ऑफ एक्स के लिए भी आपका डिनोमिनेटर क्या है? एक्स माइनस मोड एक्स, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो।
So implies x should be greater than your mod x. Implies mod x is less than x. अब आपको ये बताना है कि क्या mod x आपका x से कभी छोटा हो सकता है? क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं? अभी हमने देखा पॉजिटिव के लिए आपका mod x x होगा, जीरो के लिए भी mod x x होगा, नेगेटिव के लिए mod x आपका ग्रेटर देन x है. सो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? और आप फॉर्मूला बुक में ये वैल्यू डाल सकते हैं. राइट, दिस इज वन ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर? द mod x is always greater than or equal to x. Okay, my voice is breaking. अगर वॉइस ब्रेक कर रही है तो लेट अस वेट फॉर 2-3 मिनट्स. जस्ट लेट मी नो, रेज योर हैंड किस किस के लिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, विवेक, सान्या, करिश्मा, नेहा. So many of you. Okay. Okay, so let us wait for 1-2 minutes. Because net का कोई इश्यू आया होगा मे बी. डेफिनेटली इट इज नॉट इन आवर हैंड. तब तक आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? क्या अभी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जस्ट लेट मी नो. Still you are not able to hear me, students? Please give me some response in chat box. So I think Chulika and Sneha are not able to hear me, right? And Vivek also. Okay, voice is breaking.
So shall we begin? शुरू करें? ओके, सो इस क्वेश्चन से आप फॉर्मूला बुक में एक चीज डाल सकते हो, दैट इज योर mod x is always greater than or equal to x. So your mod x is greater than x for negative integers, right, or negative numbers for x belongs to r minus, and your mod x is equal to x for x greater than or equal to 0, और इसको लिख सकते हो for x less than 0, right. नेगेटिव नंबर्स के लिए mod x is greater than x, and for 0 and positive numbers, those are non-negative numbers, your mod x is equal to x, right. तो ये फॉर्मूला बुक में डाल देना, जैसा मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन आपको नई नई चीजें सिखाएगा, तो फॉर्मूला बुक 5 टाइम्स. तो क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? The domain of G is not possible, so domain of G will be pi, and domain of F will be not pi. Okay, so domain of G is here pi, and domain of F is something. Obviously, that is certainly not pi. That will be our answer. Now let us see after that. Question 11 के बाद I think आपको doubt है question number 14. Okay, so let us see question number 14 now. That capital I be the set of integers, capital N be the set of non-negative integers. अब इसको समझना. In 8, हाँ वो देखते हैं आर्यन 18th आयो मार्क. So where were we? 14 ना. So let I be the set of integers. Integers मतलब 0, 1, 2, -1, -2. This is my I. Capital N be the set of non-negative integers. चलो कैपिटल N है आपका नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव को हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा? 0, 1, 2, 3. पता चल रहा है? कैपिटल N इज योर नॉन नेगेटिव. NP इज योर नॉन पॉजिटिव. नॉन पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव को हटा दो, तो आपको मिलेगा 0, -1, -2, ऐसे चलता जाएगा. कैपिटल E is the set of even and P is the set of prime numbers. even आपको पता ही है, और even इंटीजर्स बोला है ना. हाँ 0, 2, 4 चलता जाएगा. प्राइम में फिर P be the set of prime numbers, and prime numbers are always positive.